بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید قربان نزدیک تھی۔ اشرف کے بڑے بھائی کے گھر کے سامنے قربانی کے خوبصورت جانور بندھے ہوئے تھے، جن میں بیل بھی تھا اور بکرے بھی۔ اس نے دیکھ کر بڑی امید سے دل میں ایک گمان باندھا کہ اس عید پر اچھا گوشت کھانے کو مل جائے گا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ گوشت تو بھائی کے کام بھی نہیں آنے والا، کیونکہ دوستو آج جو سچی اور دردناک داستان میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ دو بھائیوں کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے جو ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ کہانی اشرف اور اشفاق کی ہے۔ اپنے والد منور حسین اور والدہ آمنہ بی بی کی یہ 5 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا تھا اشفاق۔ اشفاق کے بعد اس سے چھوٹی اس کی 3 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹا تھا اشرف۔ اشفاق کے والد منور حسین بڑے محنتی انسان تھے۔ جس مکان میں رہائش پذیر تھے وہ خود ان کے والد یعنی اشفاق کے دادا کا بنایا ہوا تھا۔ 2-3 کمروں کا کچا پکا سا ایک مکان تھا، جس کے بڑے سے سین کے کونے میں واش روم بنا ہوا تھا، اور اب تک وہ لوگ اسی مکان کو استعمال کر رہے تھے، جہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا منور حسین اس کی تعمیر کر لیا کرتا۔ لیکن پرانے وقتوں کے لوگ تھے، لہٰذا کھلا رزق ہونے کے باوجود بھی ہاتھ کھلا نہیں چھوڑتے تھے۔ دیکھ بھال کر اور بڑی میانہ روی سے دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کو گزار رہے تھے اور 5 بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ منور حسین کی اپنی بیکری تھی جو کہ اچھی خاصی چلتی تھی۔ ان کی بیکری پر ہر قسم کا سامان موجود تھا، لہٰذا گاہک بھی خوب آتے تھے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے تھے اور انہیں تعلیم دلوا رہے تھے۔ مگر شاید یہ بھی آنے والے مستقبل کے لیے ایک بہترین قدم تھا۔ بڑا بیٹا اشفاق 12ویں جماعت کا طالب علم تھا اور چھوٹا اشرف تو ابھی بہت چھوٹا تھا، جب اچانک ایک دن بیکری سے دل دہلا دینے والی خبر موصول ہوئی کہ منور حسین کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اشفاق نے فوراً سین میں کھڑی بائک کو کک ماری اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیکری کا رخ کیا، مگر وہاں پر پہنچا تو شٹر گرے ہوئے تھے، بیکری بند تھی، ملازم انہیں لے کر ہسپتال جا چکے تھے۔ وہ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا مگر دیر ہو چکی تھی۔ سامنے ہی ہسپتال کے کوریڈور میں ایک اسٹریچر پر ایک باڈی موجود تھی اور اس شخص کا چہرہ سر تک سفید کفن سے ڈھانپا گیا تھا۔ اشفاق مردہ قدموں سے آہستہ آہستہ اسٹریچر کے پاس پہنچا، دل میں دعا کی، خدایا یہ میرے ابا نہ ہو، مگر موت کو کون ٹال سکتا ہے۔ اور اس دن منور حسین کی موت آ چکی تھی، اجل انہیں لے کر کب کا روانہ ہو چکا تھا۔ اشفاق نے کانپتے ہاتھوں سے کفن اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کے باپ کا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اشفاق باپ کے مردہ وجود کو لے کر گھر پہنچا تو ماں دروازے پر ہی تسبیح ہاتھ میں تھامے منتظر نگاہوں سے کھڑی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر شوہر کی صحت و تندرستی کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر آج دعائیں قبول ہونے کو دن نہیں تھا۔ بڑا بیٹا باپ کے مردہ وجود کو لیے گھر پہنچا تو جیسے اس ہنستے بستے گھر میں ایک قیامت اتر آئی ہو۔ ایک طوفان تھا جو برپا ہو چکا تھا، ایک پہاڑ جیسا صدمہ تھا جس نے اس گھر کے وجود کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بچے باپ کی چارپائی سے لپٹ کر بری طرح رو رہے تھے اور خود آمنہ بیگم تسبیح ہاتھ میں پکڑے دل تھامے آنکھوں میں آنسو لیے شوہر کے مردہ وجود کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ان کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ دھانے مار مار کر روئیں، مگر اپنے بچوں کے روتے بلکتے چہرے دیکھ کر انہوں نے صبر سے کام لیا، سارے بچوں کو اپنے ساتھ لگایا اور انہیں ہمت اور تسلی دینے لگی۔ شام تک منور حسین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بس پھر اس دن سے اس گھر کی زندگی اور گھر میں موجود لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ اشفاق حسین جو 12ویں جماعت کا طالب علم تھا، پیپر ہونے والے تھے، اس کے کاندھوں پر اب ایک خاندان کا بوجھ تھا۔ اس نے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہا اور بیکری جانے لگا، کیونکہ بیکری کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ اسے اب اگر اس مکان پر چھوڑ دیا گیا تو سارا کاروبار ڈوب جاتا، مگر آمنہ بی بی کو اب بھی فکر تھی کہ ناری بیٹا کہیں باپ کے چلتے کاروبار کو ڈبو نہ دے۔ مگر باپ کے بعد اب کاروبار دینا بھی کس کے ہاتھ میں تھا؟ بیٹے کے ہاتھ میں ہی تو دینا تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کا نام لے کر بڑے بیٹے کے حوالے سب کچھ کر دیا۔ اشفاق سمجھدار تھا، باپ کے ساتھ پہلے بھی اکثر بیکری پر بیٹھا کرتا تھا، لہٰذا کاروبار کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تھی۔ اس نے باپ کے کاروبار کو چلانا شروع کر دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دھوکے کھائے، کچھ اونچ نیچ ہوئی، مگر پھر کہتے ہیں نا، وقت سب بڑا استاد کوئی نہیں۔ گزرتے وقت نے اسے سب کچھ سکھا دیا۔ جلد ہی وہ کاروبار کو بہت اچھا طریقے سے سنبھالنے لگا تھا۔ نہ صرف سنبھال رہا تھا بلکہ کاروبار کو ترقی بھی دے رہا تھا۔ چھوٹی 2 بہنوں کی منگنی تو خاندان میں اس کے والد اپنی زندگی میں کر گئے تھے، لہٰذا اس نے والد کی وفات کے 3 سال کے اندر اندر دونوں بہنوں کی شادی کر دی، تیسری کی منگنی بھی کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پلاٹ لے کر اس پر نیا مکان بھی بنانا شروع کر دیا۔ ایک بیکری جس میں وہ خود کام کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اسٹور روم کرائے پر بھی لے رکھا تھا۔
वहाँ भी अपनी बेकरी की दूसरी शाख खोल ली और इसमें भी नई चीज़ें ऐड कर ली। बेकरी का काम खूब चल रहा था। 2 साल बाद इशफाक ने अपनी तीसरी बहन की शादी करके इसे भी अपने घर रुखसत कर दिया। अब इसकी अपनी उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी थी। शौहर की वफ़ात के बाद आमना बेगम खुद भी जैसे हिम्मत खो चुकी थी, मगर अपने घर को और बच्चों को इस तरह आगे बढ़ता देखकर इन्हें तसल्ली भी रहती थी। अब वो इशफाक के लिए रिश्ता देख रही थी। दूसरी तरफ सबसे छोटा बेटा अशरफ, वो नहम क्लास का तालिब इल्म था। 6 माह के अंदर ही इशफाक की शादी हो गई। घर में बहू आ गई, जैसे रौनक सी लग गई। बेटियाँ रुखसत हो चुकी थी तो अब एक बेटी और आ गई थी। इसने आते ही घर का निज़ाम संभाल लिया। आमना बेगम अब ज़्यादातर इबादत में मसरूफ़ रहती थी। घर के कामों के मामलात में वो कम ही दखल दिया करती थी। इशफाक की शादी को 1 साल गुजरा तो अल्लाह ताला ने इसे बेटे की नेमत से नवाजा। बस ये वो आखिरी खुशी थी जो आमना बेगम ने अपने घर की और अपने बच्चों की देखी। इसके बाद एक रात उन्होंने भी खामोशी से आंखें बंद कर ली। इस वक्त अशरफ 10वीं जमात का तालिब इल्म था और बस ये सदमा अशरफ के दिल को ऐसा लगा कि इसका पढ़ाई से दिल उठ गया। माँ की मौत को इसने इस कदर दिलो दिमाग पर तारी कर लिया कि 10वीं जमात के पेपर ना दे सका। वो खामोश और चुप चुप और अलग थलग रहने लगा। इशफाक की तो शादी हो चुकी थी, इसका अपना ख़ानदान था, बीवी बच्चे थे। वो शाम को बेकरी से आता तो अपने बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो जाता और अशरफ वो तन्हा हो गया था। पहले भी वो जब स्कूल कॉलेज से वापस आया करता था तो अपनी माँ के साथ मिल बैठ कर खाना खाया करता था। अब अशरफ का साथ इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। वो अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करने लगा था। होना तो ये चाहिए था कि इस मौका पर बड़ा भाई साथ देता, वो आगे बढ़ता, भाई को गले लगाता, इसकी हिम्मत बढ़ाता, पढ़ाई की तरफ इसे दोबारा लगाने की कोशिश करता। मगर इशफाक ने इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी और अगर कभी अशरफ बेकरी पर चला जाता तो इशफाक इसे वहाँ भी ज़्यादा देर टिकने ना देता। बेकरी का कोई भी काम वो अशरफ के ज़िम्मे लगाने पर राज़ी नहीं था। वो हमेशा इससे साफ और खरा जवाब दिया करता था कि तुम नए हो, काम ख़राब कर दो कि नुकसान होगा। लिहाजा अशरफ चुपचाप वहाँ से उठकर घर चला जाता। खैर इसी तरह वक्त गुजरता रहा। देखते ही देखते अल्लाह ताला ने इशफाक को एक बेटी और मज़ीद एक बेटे की नेमत से नवाजा। इस मौके पर इशफाक की बहनों ने भाग दौड़ की और अशरफ की मंगनी कर दी। मंगनी हो चुकी थी तो 4 माह बाद शादी की तारीख भी रख दी गई। इशफाक ने खुले दिल से भाई की शादी पर खर्च किया और अशरफ की दुल्हन को ब्याह कर घर ले आए। घर में एक फ़र्द का इजाफा हो चुका था। भाई का ख़ानदान भी अब बड़ा था। घर तंग महसूस होने लगा। तब एक दिन अचानक इशफाक ने फ़ैसला किया और अपने फ़ैसले से अशरफ को आगाह करते हुए कहने लगा, तुम इसी घर में रहो, मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि अब घर में तंगी सी महसूस होती है। अशरफ ने खामोश निगाहों से भाई की तरफ देखा तो इशफाक मज़ीद वजाहत करते हुए कहने लगा, कुछ अरसे से मैंने एक मकान शुरू कर रखा था, वो मुकम्मल हो गया है, मैं अब इसमें शिफ्ट हो रहा हूँ। अशरफ खामोश रहा। वो क्या कह सकता था क्योंकि अब सारा करता धरता तो खुद इशफाक ही था और फिर वही हुआ जो इशफाक ने कहा था। चंद दिन बाद इसने अपना ज़रूरी सामान समेटा और यहाँ से रुखसत हो चुका था। मगर इशफाक के घर से रुखसत हो जाने के 10-15 दिन बाद ही अशरफ को एक नई परेशानी ने आ घेरा। पहले तो इशफाक सारे घर का खर्चा चला रहा था, मगर अब अपने घर का खर्च तो अशरफ को ही खुद करना था। इसके अलावा बिजली के बिल और दीगर ज़रूरियात भी, मगर अशरफ तो कुछ भी नहीं करता था। तालीम इसने अधूरी छोड़ी थी और नौकरी मिलने का कोई इम्कान नहीं था। हाँ, फ़िलहाल वो कोई छोटी मोटी नौकरी की तलाश में था, लेकिन जब तक नौकरी मिल नहीं जाती तब तक वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा। चंद दिन तो वो इसी परेशानी में घिरा रहा। फिर अपने दिल को मार कर एक दिन इशफाक के घर चला गया। इशफाक के घर गया तो देखकर हैरान रह गया। इशफाक का बड़ा बड़ा घर बहुत खूबसूरती से ना सिर्फ बना हुआ था बल्कि बहुत उम्दगी से सजावट की हुई थी। एक एक चीज़ मुंह से बोलकर अपनी कीमत का इजहार कर रही थी। अशरफ ने दबी ज़बान से भाई से कहा, मुझे घर की खर्च के लिए तंगी हो रही है तो मुझे अब्बा के कारोबार से कुछ हिस्सा दे दीजिए। अशरफ की बात सुनते इशफाक ने माथे पर हज़ारों बल डाले और सख्त लहजे में कहने लगा, किस हिस्से की बात कर रहे हो? वो मकान दे तो दिया है तुम्हें जिसमें तुम रह रहे हो, इसके अलावा अब्बा ने छोड़ा क्या था? एक छोटी सी बेकरी। बाकी ये सब कुछ तो मैंने अपने बलबूते पर किया है और अब्बा की इस छोटी सी बेकरी से मैंने 3 बहनों को ब्याह कर रुखसत किया, ये भी याद है ना? आज तक पूरे घर का खर्च भी चलाता रहा हूँ, तो ये सब कुछ मैंने कहाँ से किया? हिस्सा अब कौन सा बचता है तुम्हारा? वो मकान भी लाखों का है जिसमें तुम बैठे हो, इसीलिए तो मैं वहाँ से निकल कर यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ क्योंकि ये मैंने अपने बलबूते पर बनाया है और वो जो अब्बा का मकान था वो तुम ले लो। अशरफ हैरान परेशान नज़रों से भाई के बदलते रंग और रूप देख रहा था और फिर इशफाक उठकर कमरे में गया। कुछ देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में
हज़ार नोटों की 5 गड्डियाँ थीं। अशरफ के सामने मेज़ पर पटकते हुए अशफाक ने कहा, ये लो 5 लाख रुपए, मेरा एहसान मानो और चुप करके लेकर चलते बनो। अभी भी हिस्से की बात सुना रहा है। बाल सफ़ेद हो गए मेरे, तुम लोगों का करते करते। अब कौन सा हिस्सा रखा है यहाँ? अशरफ ने चुपचाप वो 5 लाख रुपए उठाए और गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। पीछे से इसे भाई के बड़बड़ाने की आवाज़ें अब भी आ रही थी। वो घर चला आया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, और कोई नौकरी तलाश करूंगा तो मैट्रिक फेल को छोटा मोटा काम मिलेगा, इससे घर का खर्च नहीं चलेगा। लिहाजा इसने कुछ सोचते हुए 1 लाख रुपए अपने पास महफूज रखा और 4 लाख रुपए का घर के एक मकान में किराने का सामान रखकर एक मुख्तसर सी दुकान बनाकर बैठ गया। नई दुकान थी, नए कारोबार को चलते भी वक्त लगा। अशरफ रोज़ दुकान पर बैठता, जैसे सुबह बैठता वैसे ही शाम को बंद करके आ जाता। 1 रुपये की बिक्री न होती, वो बहुत ही बचत से अपने घर का गुजारा कर रहा था। फ़िलहाल इसके पास सिर्फ 1 लाख रुपये थे। न जाने इस 1 लाख से अब इसे कितना अर्सा गुजारा करना पड़ेगा। यही सोचते हुए परेशान रहा करता था। इसी दौरान ईद कुर्बान आ गई। अशरफ, जो कि बहुत तंगी से अपने घर का गुजारा कर रहा था, एक रोज़ इस गली के सामने से गुजरा तो देखा अशफाक के घर के आगे 3 कुर्बानी के जानवर बंधे हैं, एक बड़ा खूबसूरत बैल और 2 बकरे। अशरफ ने दिल ही दिल में गुमान किया कि चलो ईद पर भाई के घर से गोश्त ले आऊँगा। ईद का दिन भी आ गया। अशरफ ने धुला हुआ पुराना लिबास पहनकर ईद की नमाज अदा की, फिर घर आकर खामोशी से बैठ गया। काफ़ी देर तक वो दोनों मियाँ बीवी इंतज़ार करते रहे कि अशफाक के घर से गोश्त आएगा। आखिर वो ईद के मौका पर अपने भाई को याद तो रखेगा। मगर 4 बजने वाले थे, अभी तक दरवाजे पर कोई आहट ना हुई। अशरफ के दिल में मायूसी सी छाने लगी। फिर अचानक वो उठकर खड़ा हुआ और अपनी बीवी से कहने लगा, मसरूफियात में याद भूल गया होगा, मैं खुद जाकर ले आता हूँ। बीवी के सामने तो ऐसा कह दिया था, मगर भाई के घर पर गोश्त मांगने के लिए जाते हुए इसे शर्म महसूस हो रही थी। मगर फिर भी दिल करा करके वो अशफाक के घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा अशफाक के बेटे ने खोला। अशरफ अंदर दाखिल हुआ। अशफाक सामने ही खड़ा था। भाई को ईद की मुबारकबाद दी, इससे गले मिला तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे लगा मसरूफियत में भाई को याद भूल गया है, मेरे घर गोश्त ही नहीं भेजा आपने अभी तक। मैंने कहा मैं खुद ही ले आता हूँ। अशरफ की बात सुनकर अशफाक ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहने लगा, तुम्हें तो मैं भूल ही गया, मैंने तो सारा गोश्त मार दिया, अब तो एक बोटी भी नहीं बची। भाई के मुंह से ये कोरा जवाब सुनकर अशरफ कुछ देर दंग रह गया और फिर मुस्कुराते हुए चंद मिनट वहाँ रुका और फिर मायूसी से निकल आया। रास्ते में सोच रहा था कि बीवी को क्या जवाब देगा। इसके भाई ने सारा गोश्त बांट दिया और अपने ही सगे भाई को भूल गया। इसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ईद का सारा दिन यूं ही गुजर गया। भाई के घर कुर्बानी के इतने ज़्यादा जानवर थे, इसके बावजूद भी अशरफ कुर्बानी के गोश्त से महरूम रहा। इसका दिल बहुत अफसरदा था। कई दिन वो इस बात को अपने दिल से निकाल ना सका। ईद को तकरीबन 10 दिन गुजर गए थे। अशरफ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था जब एक शख्स भागा हुआ इसकी दुकान पर आया और कहने लगा, अशरफ जल्दी चलो, तुम्हारे बड़े भाई अशफाक की बेकरी पर आग लग गई है। ये सुनना था कि अशरफ के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसने जल्दी से चप्पल पहनी, अपनी दुकान बंद की, बाइक को किक मारी और भाई की दुकान की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ पहुँचा तो एक दिल दहला देने वाला होलनाक मंजर इसका मुंतज़िर था। अशफाक और इसके मुलाजमीन दुकान से बाहर खड़े थे और दुकान में आग भड़क रही थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले रही थी। अशफाक और इसकी मुलाजिम भाग भाग कर जो चीज़ें निकाल सकते थे वो निकाल रहे थे। अशरफ भी जल्दी से इनकी मदद करने लगा, मगर आग ने दुकान के एक बड़े हिस्से पर काबू पा लिया था। अब लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे की कोशिश के बाद आग तो बुझ गई, मगर आग ने हर चीज़ जलाकर भस्म कर दी थी। आग बुझाने के बाद अशफाक अपने मुलाजमों के साथ दुकान में घुस गया और जली हुई चीज़ों को लोग खींच कर बाहर निकाल रहे थे। इत्तेफाक में एक फ्रीज़र को बाहर निकाला गया, जो कि बाहर से तो जल कर पूरी तरह भस्म हो चुका था। और जब इसे खोला गया, अशरफ हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि इस फ्रीज़र में बेकरी का कोई सामान नहीं था। गोश्त के कई पैकेट थे और फ्रीज़र की एक साइड भरी हुई थी, जो कि अब ज़ाया हो चुकी थी। ऊपर के पैकेट तो मुकम्मल तौर पर जल कर भस्म हो चुके थे, जबकि निचला भी अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा था। अब अशफाक के मुलाजमीन जले हुए गोश्त को फ्रीज़र से निकाल कर बाहर कचरे के ढेर पर फेंक रहे थे और अशरफ हैरान नज़रों से ये मंजर देखते हुए दिल में सोच रहा था कि कुर्बानी के दिन अशफाक ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा था, अरे गोश्त तो सारा बांट दिया, मुझे तुम्हारा याद ही नहीं रहा। अब ये इतना सारा गोश्त जलकर भस्म हो चुका था। अशरफ को अफसोस इस बात का था कि भाई ने झूठ बोलकर अपना फ्रीज़र गोश्त से भर रखा था, मगर कौन जानता था कि ये इसके अपने काम भी नहीं आएगा। तासुफ से सर हिलाते हुए अशरफ ने अपने घर का रुख किया। नाज़रीन,
مزید اس طرح کی کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔